This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode because we are going to start IELTS 19, which has released on 31st of July. So it's going to be a very special session for all of you. And I will try my level best to give very good explanation, and I will discuss each and everything from IELTS 19 because it was published in 2024, so it is the most updated IELTS paper pattern. And I have also observed a few changes in IELTS general reading section. I will discuss in my today's class. So first, we are focusing on IELTS listening, part 1, part 2, part 3, and part 4. As you all know that in IELTS listening, you have 4 different parts. In today's class, I will focus on 2 parts: IELTS listening part 1 and IELTS listening part 4. There is a similarity in IELTS listening part 1 and part 4. In both parts, you will find fill in the blanks. And they are the easiest part in IELTS listening module. But the problem that most of the students face is spelling problems. Sometimes spellings are very easy, but you make spelling mistakes and you have deductions of marks in your exam. So I advise all of you to please focus on your spellings from the very first day. Otherwise, you are going to face music. You will face the consequences. So IELTS listening part 1 is a conversation. IELTS listening part 4 is a monologue. It's a conversation and it's a monologue. And what I believe that when you listen to this part, you can also guess your answer. But when you listen to IELTS listening part 4, you cannot guess your answer. This is the difference. A conversation, a monologue, you can guess 2, 3 answers, but in IELTS listening part 4, you cannot guess because it's an educational lecture. Sir, is it possible to get IELTS 8 bands? बेटा, अगर आज अपने पास कहीं लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, I will get 8 bands in IELTS listening. जहां तुम बैठ के पढ़ते हो ना, आइल्स की स्टडी करते हो, अपनी एक जगह सेट कर लें और वहां लिख दीजिए दीवार पर, एक पोस्टर पर, आई विल गेट 8 bands in IELTS listening. I assure you, you will get 8 bands. But the reason, the key success stories, what success stories say? 30 minutes every day practice take you towards IELTS 8 bands. If you think that you don't practice, you just, I know, I understand. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे आता है, मैं कर लूंगी. क्या आप आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करती हैं या करते हैं? जवाब दीजिए yes or no. If yes, you will definitely get 7+. और जब एग्जाम आ जाए तो एग्जाम से पहले देखो, मेरा ये बहुत आजमाया हुआ फॉर्मूला है. इसको भले से तुम सेव कर लो, कहीं बैठो अच्छी जगह, कोई तुमसे पूछे, कहना तुम्हारे पास 8 वीक्स हैं, तुम 30 मिनट्स रोजाना प्रैक्टिस करो. 30 minutes a day. When you have 8 weeks in your hands, when you have 8 weeks in your hands, लोग सो कराते हैं मेरे पास, क्यों मुझे तंग करते हैं?
अब यहां पर आप ये नोट कीजिएगा, 30 मिनट्स अ डे। आपके पास 8 वीक्स हैं, आपने 30 मिनट्स अ डे। आपके पास अब 4 वीक्स रह गए। आप अपनी तैयारी के ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब आप दो दो सेट लगाइए, 30 मिनट्स, 30 + 30। अच्छा देखो, ये मेरी इस बात को याद रखना, एक साथ मैंने नहीं कहा कि प्रैक्टिस करने बैठ जाओ पूरा 1 घंटा दो, नहीं। सुबह में आधा घंटा निकाल लिया, शाम में आधा घंटा निकाल लिया, ब्रेक चाहिए मुझे। अब आपके पास 2 वीक्स रह गए। अब 2 वीक्स है तो अब आपका टाइम फ्रेम और बढ़ जाएगा प्रैक्टिस का। 30 मिनट्स, 30 + 30 + 30। जब आपका और पेपर, अब एक हफ्ते बाद पेपर है, एक बच्ची जिसने 8.5 बैंड्स लिए लिसनिंग में, मैंने कहा तुमने क्या किया? सर, मैं 5 आवर्स रोजाना लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, रोजाना। अच्छा देखिए, आपका कोई एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो लाजमी तौर पर कमजोर होता है, ठीक है? उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करें और उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें जब आपका पेपर करीब आ रहा हो, ठीक है? लेकिन अगर आपका पेपर, आपको लगता है हाँ भाई अभी टाइम है मेरे पास, जैसे जैसे टाइम कम होता रहे अपनी प्रैक्टिस का ड्यूरेशन बढ़ाते रहे। आखिरी हफ्ते में जब आपके पास एक हफ्ता है तो बस 5 घंटे आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो, छुट्टी ले लें ऑफिस से। फिर आप देखें, आप अगर 8 बैंड का फॉर्मूला बता रहा हूँ ये मैं, लेकिन अगर आपने वही 30 मिनट्स की सीक्वेंस रखी, भाई एक हफ्ता रह गया, थोड़ा मैक्सिमम टाइम। ये आजमाए हुए फॉर्मूले हमारे, 8 वीक्स, 4 वीक्स, 2 वीक्स। अब ये नहीं कि आपने बिल्कुल मैन हो गई, लिसनिंग की तैयारी हो गई, वो बच्चे जो अपना स्कोर नहीं कर पाते, मेरी लिसनिंग की तैयारी हो गई है साइड में कर दिया, लिसनिंग तो मैं कर लूंगी, वो तो मैं समझ आ जाती है, मैंने पास पेपर्स किए हुए। बेटा, डेली प्रैक्टिस टेक यू टुवर्ड्स 8 बैंड्स। ये नहीं कि मुझे आता है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने किया हुआ है, मैंने पास में भी दिया हुआ है, मैंने मॉक टेस्ट दिए, मेरा 8 बैंड आ रहा है, 7 आ रहा है। डेली प्रैक्टिस टेक यू टुवर्ड्स 8 बैंड्स, ये जुमला लिख लो मेरा। डेली प्रैक्टिस, आप आदी हो जाते हैं। और जब आप एक हफ्ते भी प्रैक्टिस को बंद कर देते ना, वो आदत खत्म हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आती, यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब देखते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आइल्स 19 के अंदर क्या आया है। मैंने भी नहीं देखा, आप लोगों के साथ ही जाऊंगा मैं आज आइल्स 19 को देखूंगा कि आइल्स 19 के अंदर क्या आ रहा है। क्या ये भाई, आइल्स 19 पार्ट 1 टेस्ट 1। आपसे पूछा जा रहा है एरिया डैश हेक्टर्स। अच्छा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हेक्टर्स जो होता है वो 100, 1000 शायद कोई नंबर में आएगा। जहां तक मेरी नॉलेज है, हेक्टर्स जो है वो नंबर हमें कोई बताना है। अच्छा, ये आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 के अंदर आपके पास नंबर, अमाउंट, लोकेशन, टाइम, रीजन, स्किल्स, ये जो 5 चीजें मैंने लिखी है ना, ये पूछी जाती। अच्छा, वहां देखो फिर कहते हैं हैबिटेट्स, वेटलैंड, ग्रासलैंड एंड वुडलैंड। वेटलैंड, लेक्स, पॉन्ड्स एंड आ। अच्छा, अब जो भी जवाब होगा वो सिंगुलर में होगा। अब खुद बताओ क्या हो सकता है यहां पर, शायद गैस किया जा सकता है। क्या हो सकता है? गैस करो, गैस करो, गैस करो, गैस करो। व्हाट कुड इट बी? यस, क्या हो सकता है? मैंने चैट्स पढ़ना शुरू कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी क्लास के, हाँ माहिन, मेरी जहन में भी यही आ रहा है, मुझे नहीं पता। आई विल कम टू नो टुडे व्हेन आई लिसन। आई हैव नॉट लिसन इट बिफोर। माहिन, एक्सेलेंट आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होगा, ये भी मेरे जहन में था। क्या हो सकता है बताइए यहाँ पर? लेक्स, पॉन्ड्स एंड आ। सोचें, कोई पानी वाली चीज। वेरी गुड शुमाइला, हाँ ऐसा हो सकता है, आपका जवाब भी सही हो सकता है। इसमें से इरफान, वेरी गुड। मेरा भी जहन इधर जा रहा है।
but I'll see whether it is or not. लेकिन मेरा yes, Aliza, West, very good Nazish. Yes, Hamza, you are absolutely right. मेरे पास तीन जवाब देखिए, a sea and a sea, a river, a pool, a waterfall, a a pool, a waterfall, a river, a canal. Yes, yes, you are absolutely right. Uh, सलीथा, यस यू आर राइट। अब देखिए ये होता है गेस, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप गेस कर सकते हैं, आपको ये वाला जो पार्ट होता है इसमें गेस करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, सब्जेक्ट्स इंक्लूड एजुकेशनल विजिट्स इंक्लूड चिल्ड्रन लुक एट डैश अबाउट प्लांट्स, look at dash about plants, look science, look at what, look at what। अच्छा, dash about plants क्या हो सकता है? plants के हम क्या, हमने जरा को जरा सोचे अपने साइंस की किताब के बारे में, हमने प्लांट्स के क्या पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स अबाउट प्लांट्स। अच्छा, पार्ट्स की जगह फैमिलीज अबाउट प्लांट्स, लुक एट। और सोचें, एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, अल्लाह करे वही हो गया तो सर बहुत पहुंचे हुए हैं मेरा। लीव्स, लीव्स अबाउट प्लांट्स नहीं, टाइप्स अबाउट प्लांट्स नहीं, मैच नहीं हो रहा। और बुक्स अबाउट प्लांट्स, चिल्ड्रन लुक एट बुक्स, साइंस के हवाले से subject studied is educational visits include science, children look at dash about plants, kinds about, वहां देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, pictures about plants, look at pictures, look at pictures, look at, yes, मैं किरण आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, और गैस करें पहले से आपके जहन में कोई बात आ रही हो। लुक एट फंक्शंस अबाउट प्लांट्स नहीं, देखते इमेजेस अबाउट प्लांट्स एटसेट्रा सुनेंगे। अच्छा, इंक्लूड्स लर्निंग टू यूज अ डैश एंड अ कंपास। अब ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो एक तो कंपास होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सोचें, दूसरी चीज क्या होती है? नीडल, मैप, a map, learning to use a map, learning to use a needle and compass। चले देखेंगे। Leisure and tourism mostly concentrate on the parks, on the parks, park सुनना पड़ेगा। Children make dash with natural material, बताओ बच्चे क्या बनाते हैं? नेचुरल मटेरियल से क्या बनाते हैं? ठीक है किरण, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा बेटा। चिल्ड्रन मेक, चिल्ड्रन मेक, यस नादिया, यू हिट द बुल्स आई, वेरी गुड। डॉक्टर जिले शम्स, वेरी गुड। मेक डैश विद, यस मरियम, यू आर राइट। अब देखेंगे हमारा ये गैस सही है। चिल्ड्रन मेक टॉयज विद नेचुरल। मैं आप लोगों के साथ पहली मर्तबा स्टडी कर रहा हूँ, आइल्स 19 अभी आई है 31 जुलाई 2024 को, सो आई एम डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम। इसको आवाज नहीं आ रही भाई। कनेक्ट योर ऑडियो, कनेक्ट योर ऑडियो। अच्छा जी, उसके बाद देखें, चिल्ड्रन मेक टॉयज हमने गैस किया, दे गिव चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ डैश दैट दे मे नॉट हैव एल्सवेयर, फीलिंग ऑफ व्हाट? अच्छा, अब देखो एक बात याद रखना बेटा, अब जरा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फोकस करो। ये वर्ड बदल जाएगा, ये वर्ड बदल जाएगा, ये वर्ड बदल जाएगा। ऑन द पार्क्स, यहां पे भी ये वर्ड बदलेगा। लर्निंग टू यूज अ, ये वर्ड भी बदलेगा। फीलिंग ऑफ बदल जाएगा लाजमी तौर पे। चिल्ड्रन लर्न न्यू डैश एंड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, चिल्ड्रन लर्न न्यू, न्यू व्हाट? न्यू, वेरी गुड जुनैरा, यू हिट द बुल्स आई। नादिया, वेरी गुड। अगर तो ये आप खुद से सोच के बता रही हैं, आई रियली अप्रिशिएट। न्यू टेक्निक्स, न्यू स्किल्स, न्यू एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, न्यू स्किल्स मुझे मैच होता है, एंड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया।
Adults such as dash free, such as dash free, adults dash such as dash. क्या चीज फ्री हो सकती है? आप कहीं किसी कंट्री पार्क में जा रहे हैं, क्या चीज फ्री हो सकती है? एंट्री फ्री हो सकती है, टिकट फ्री हो सकता है, पार्किंग फ्री हो सकती है, वाईफाई फ्री हो सकता है। सुनना पड़ेगा, आइए सुनते हैं। ठीक है, फिर आपके साथ चलते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अब हेडफोन्स फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी, यू मस्ट हैव हेडफोन्स। प्लीज मेरी ऑडियो प्ले कीजिएगा। Visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. We have already looked at 1 to 6. Peter, आप आगे चले। 2 of our classes. 2 of our classes. Okay, what would you like to know? Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Altogether, the park covers 170 acres. That's 69 hectares. There are 3 main types of habitat: wetland, grassland, and woodland. The woods are well established and varied, with an oak plantation and other areas of mixed species. Right. The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the 2 large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. Okay, so I suppose. बताइए नंबर 2 में। वेरी गुड कीश्वर, यू हिट द बुल्स आई। अब देखें, एक हम किसी ने गैस नहीं किया था, लेकिन सुनने के बाद फौरन आपने जवाब पकड़ लिया होगा कि सर ये है। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस, आगे चलिए। With these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits. And I understand you organize educational visits for school parties. That's right. We can organise a wide range of activities and adapt them to suit all ages. Can you give me some examples of the activities? Well, one focus is on science, where we help children to discover and study plants, trees, and insects. They also collect and analyse data about the things they see. Uh-huh. Another focus is on geography. बताइए। Children look at, very good Hamza, you got it. Very good Raman, Kishwar, very good. That's very good. दोबारा सुन ले। And analyse data about the things they see. Uh-huh. Another for children to discover and study plants, trees, and insects. They also collect and analyse data about the things they see. Uh-huh. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. Yes. Very good Hamza. अभी आएंगे आपके पास करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे सारे। इंक्लूड्स लर्निंग टू यूज आ। अच्छा देखिए, जो डैश से पहले आर्टिकल होता है ना, वो आपको सुनने को मिलेगा। सुनिएगा, आप आ को फोकस कीजिएगा। Uh-huh. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. Do you do anything connected with history? Yes, we do. For instance,
The children can explore how the use of the land has changed over time. Then there's leisure and tourism. That focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. यस मोस्टली। अच्छा अब देखो जब कॉन्वर्सेशंस चल रही होती है ना तो आधी बात वो बोलता है और आधी बात वो बोलती है। अब इसने कहा यस मोस्टली, अब आपके हाँ अच्छा अब वो क्या जवाब क्या है, वो तो उस आदमी ने बोल दिया कि आपका जो फोकस है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट, वहां उसने बोला फोकस। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट बोथ हैव सेम मीनिंग्स, जरा फोकस कीजिएगा आप। Is on your visitors, I Explore how the use of the land has changed over time. Then there's leisure and tourism. that focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. The children find out about them, their requirements, the problems they may cause, and how we manage these. And another subject we cover is music. Here the children experiment with natural materials to create sounds and explore rhythm and tempo. That must To create sounds and अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर मेक की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लेकर आएगी, वो वर्ड लेकर आई क्रिएट। अच्छा क्योंकि यहाँ पर आपने देखे म्यूजिक को नहीं पढ़ा, तो जब म्यूजिक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ टॉयज तो नहीं आएंगे ना। चिल्ड्रन मेक टॉयज विद नेचुरल मटेरियल, मेरी नजरों में भी म्यूजिक नहीं गया था, तो कभी भी मैं कभी भी गैस नहीं करता टॉयज। अगर म्यूजिक को देख लेते तो शायद आप पहले से कुछ और क्रिएट कर लेते। दोबारा सुनिए। they may cause and how we manage these. And another subject we cover is music. Here the children experiment with natural materials to create sounds and explore rhythm and tempo. that must be fun. Most children really enjoy it. अच्छा देखो यहाँ पर दे का वर्ड इस्तेमाल किया, ये लोग प्रोनाउन के ऊपर खेलते हैं। यहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, वहां उसने बोला दे क्रिएट साउंड्स। तो जब उसने ये कहा दे क्रिएट तो आप सोच रहे थे चिल्ड्रन कहाँ गया, तो चिल्ड्रन का उसने प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की भी से आपसे खेल रहे होते हैं, नाउन का इस्तेमाल के बजाय वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये एक टेक्निक होती है पार्ट 1 की। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. पीटर हमने देख लिया, आगे So questions 7 to 10. चले आगे। And of course, all the activities are educational too. Learning outside the classroom encourages children to be creative and to explore and discover for themselves. I would imagine they get a sense of freedom that might not be a normal part of their lives. That's right. दैट्स राइट। अच्छा ये मैंने पहले भी सुना है, अ फीलिंग ऑफ की जगह पर अ सेंस ऑफ, ये प्रीवियस बुक्स में भी मैंने सुना है, अ फीलिंग ऑफ, अ सेंस ऑफ, अ फीलिंग ऑफ, अ सेंस ऑफ। वेरी गुड इरफान। चिल्ड्रन लर्न न्यू। And very often, the children discover that they can do things they didn't know they could do, and they develop new skills. This gives them greater एंड दे डेवलप, यहाँ पर देखिए लर्न लिखा हुआ है, उसने बोला डेवलप, डेवलप न्यू स्किल्स। कॉस्ट पर चाइल्ड। self-confidence. It sounds great. So, what about the practical side of it? How much does it cost for a full day visit? We would expect to bring between 30 and 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you बताइए क्या हमजा, क्या सुना? ऐसा सुना? पक्की बात है, दोबारा सुने। 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. क्या सुना? वेरी गुड इरफान। किरण वेरी गुड। अच्छा दोबारा सुने, ये गलत जवाब आ रहे, दोबारा सुने। Expect to bring between 30 and 40 children.
If there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. क्या कह रही है ये? आई एम सरप्राइज कि आपके कानों में कितने डिफरेंट साउंड जा रही है। नहीं नहीं नहीं, दोबारा दोबारा सुने। आई एम Between 30 and 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each child who 4.95, किसी ने 495 लिख दिया है, किसी ने टू का तो कहीं पर साउंड ही नहीं आ रहा। टू का साउंड कहाँ जनरेट हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ, टू कहाँ पर आ रहा है? 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each. 4.95, 4.95, आपको 4.95 लिखना है बस। अच्छा, आगे चलिए। Child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you don't pay for children who can't come because of sickness, for example. There's no charge for leaders and other adults. No charge for leaders, no charge for leader। कभी कभार वो बोल देते हैं, इस तरह से बोलते हैं 4.95, अब इसने बोल दिया 4.95। आपको फेल भी तो करना है ना, एक नंबर आपका बर्बाद भी तो करना है। चेक करें अपने जवाब। $69 stream data map visitors sounds freedom skills 4.95 लीडर्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात अब बता दूं, देखें सवाल आता है सर एस लगाने से और एस ना लगाने से मार्क्स कटेंगे। 5, 6 और 10 में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक सामने नहीं आ रही है, तो आपने विजिटर भी बोला, साउंड भी लिख दिया गलती से, लीडर भी लिख दिया, तो आपकी यहाँ डिडक्शन नहीं होगी। सिर्फ वहां पर आपके मार्क्स कटने का खतरा होता है जहां ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, जब आपके सामने कोई ऐसी ब्लैंक आएगी जहां पर ग्रामेटिकल एरर हो रहा होगा, वहां पर एस अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर अभी जितने भी आंसर्स आ रहे हैं इसमें एस आपको लगाना है, नहीं लगाया तो डिडक्शन नहीं होगी, बिकॉज कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप और 69 को लिखने का तरीका देख लीजिए, इन बातों को नोट किया करें कि 69 स्मॉल में लिखना है, बीच में हाइफन, या तो न्यूमेरिक में लिखें। अच्छा, स्लैश कर कर कभी भी दो जवाब नहीं लिखने, कि आपने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बुक में लिख कर दिया जाता है कि 69 स्लैश, कुछ बच्चे होशियारी करते हैं, स्लैश लगा के 69 में लिख दिया, योर आंसर विल गो रॉन्ग। यू ओनली हैव टू राइट वन आंसर एट अ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर 4.95 है, अब आपने अगर इसको FOUR 95 लिख दिया, योर आंसर विल गो रॉन्ग। आपको 4.95 पाउंड्स और डॉलर जो भी होता है अमाउंट, वो इसी तरह से लिखना होता है, क्योंकि ये आपको अमाउंट बता रही है, तो अमाउंट को कभी भी नंबर्स में नहीं लिखना है, अमाउंट को हमेशा न्यूमेरिक में ही लिखा जाएगा। नोट कर लिया करें, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, पेपर में हम परेशान हो रहे होते हैं। आगे चलिए, टेस्ट 2 में क्या आ रहा है भाई? कोऑर्डिनेटर का नाम पूछा जा रहा है, लेवल, लेवल आपके फौरन जहन में आ जाएंगे कि क्या लेवल है। अब ये लेवल गिटार ग्रुप लेवल, मुझे जहां तक देखिए मेरा तजर्बा क्या कहता है, आई एम डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम, इंटरमीडिएट हो सकता है, बिगिनर हो सकता है, एडवांस हो सकता है, ये सर का तजर्बा है। बाकी देखेंगे, द अब प्लेस सुनना पड़ेगा, स्ट्रीट के नाम सुनना पड़ेगा। टाइम देखिए मैंने आपसे कहा, टाइम आता है, प्लेस आती है, नेम आता है, अमाउंट आता है, तो यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, क्लॉक टाइम लिखना पड़ेगा। रिकमेंडेड वेबसाइट, द परफेक्ट डैश सुनना पड़ेगा, आसान नजर आ रहा है। फिर इधर देखिएगा, नंबर 7, यूजिंग एन ऐप और बाय, ट्यूनिंग गिटार्स एक्टिविटी, यूजिंग एन ऐप और बाय, बाय सुनना पड़ेगा। कहता है strumming chords using our thumbs, keeping time while the teacher is busy, away, absent, कुछ भी हो सकता है।
Playing songs often, listening to a dash of a song. Listening to a what? सुनना पड़ेगा. Playing single notes and simple tunes, playing together, then ऐसा लगता है then in a group, लेकिन in नहीं लिखा हुआ, आ नहीं लिखा हुआ. Then solo, then alone, playing together, then alone, कुछ ऐसा हो सकता है. सुनेंगे, आइए सुनते हैं. You've joined a guitar group. Ooh. Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with you because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Sorry? Let me note that down. Gary. How do you spell his surname? It's Mathieson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy. And he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. When I first spoke to Gary on the phone, he said it was a class for beginners, but I was still worried that everyone would be better than me. But we were all equally hopeless. Oh, that's reassuring. So, लेवल उसने आपको बता दिया, मैंने जो गैस किया था लेवल. अब देखें स्पेलिंग गलत होगी बिगिनर्स की, लिखिएगा जरा. ये माशाल्लाह, शुक्र है, वेरी गुड. देखा, हो गई गलत. अब सही स्पेलिंग क्या है अभी आपके सामने आएगी. where do you meet? Well, when I joined the group, they were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town. अब देखें, दा का जो वर्ड था ना वो कानों में चला गया है. दा मैंने आपसे कहा था सुनाई दिया जाएगा, तो दा के बाद उसने क्या कहा? नहीं सुना? दा के बाद. वेरी गुड इरफान. यस, दोबारा सुने. They were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town. I prefer going there. I know that place. I used to go to tap dancing classes there when I was at secondary school. I haven't been since, though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there, at the bottom of New Street, near the city roundabout. Yes, of course. अच्छा, अब देखो, इसने नाम स्ट्रीट का ऐसा रखा है कि लोग परेशान हो जाएंगे. जैसे इससे पहले एक दफा आया था आइलैंड ऑफ रन. भाई, रन का मतलब तो भागना होता है, तो बच्चा जब कभी पहुंचता ही नहीं कि इतना आसान भी हो सकता है रन. अब आप देखें इसने स्ट्रीट के बारे में नाम क्या बताया, गौर से सुनिएगा. इसने दो Though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there. इट इज जस्ट बियॉन्ड देयर. अब आपको ये सड़क का नाम बताएगा, उसके सामने है. At the bottom of New Street. एट द बॉटम ऑफ न्यू स्ट्रीट. अब जब इसने कहा एट द बॉटम ऑफ न्यू स्ट्रीट, तो हम कहते हैं न्यू का मतलब तो नया होता है, स्ट्रीट का नाम तो बताओ भाई. अब स्ट्रीट का नाम ही न्यू है, NEW. ठीक है ना? जी बिल्कुल. Near the city roundabout. Yes, of course. The guitar club is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30, and that suited me well. But now we meet at 11.
The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come. And that suited me well. But now we meet at 11. The class that's in there before us asked if Yes, clock time आपके जहन कानों में चला गया. Clock time at 11. they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. उरूज दोबारा सुनिएगा. Well, but now we meet at 11. But now we meet at 11. Now we meet at 11. उससे पहले सुने क्या कहा था? Is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30. अब देखो मैंने पहले भी ये बताया था. It used to be. ये लिख लो अपने पास. Used to be का मतलब ये बहुत दफा सुन लिया मैंने. 3 दफा तो सुना है मैंने लिसनिंग के पेपर में. Used to be हुआ करता था ये टाइम 10:30. ठीक है. और अब now उसने कहा now we meet at 11. And that suited me well. But now we meet at 11. The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. देख लिया हमने. पीटर आगे चले आप. Now listen and answer questions 7 to 10. So, what's a typical lesson like with Gary? Well, he always starts by getting us to tune our guitars. That takes about 5 minutes. Uh-huh. Some people have an app they use, but others do it by ear. Gary goes round and helps them. देखिए जो preposition होता है वो आपके कानों में जाता है. ईश्वर कानों में ये मुझे नहीं मतलब बड़ा डिफरेंट आंसर आया आपका. दोबारा सुनिएगा. मतलब बहुत ही आसान था. बाय App they use, but others do it by ear. अच्छा अब देखिए यही स्पेलिंग कॉमन सेंस यूज करना है कि ईयर की स्पेलिंग क्या है. मैंने आपसे कहा था कि होमोफोन्स इस्तेमाल करते हैं. अब कोई किसी ने लिख दिया AIR हवा हवा हवा. अब ये कान है या हवा है. तो ये कॉमन सेंस है जो आपको यूज करना है. होमोफोन्स मैंने आपसे कहना है. और माशाल्लाह किरण ने एक और भी लिखा YEAR. बाय ईयर. वाई 3 आ गए वर्ड्स. ईयर YEAR EAR और AIR. और भी कोई आ रहा है. चले अब जवाब क्या है. वो कॉमन सेंस. अच्छा होमोफोन्स मैंने जब भी आपसे शुरू में कहा था ना कि ईयर उसने कहा बाय ईयर. दोबारा. About 5 minutes. Uh-huh. Some people have an app they use, but others do it by ear. Gary goes round and helps them. And while he's doing that, he tells us what he's going to do during the lesson. Right. First, we usually spend about 10 minutes doing some strumming. So, is that using, oh, what are they called? Plectrums? No, we just use our thumbs. Oh, much easier. Gary reminds us where to put our fingers for each chord, and then we play them together.
Sometimes we all just start laughing because we're so bad at keeping time. So Gary starts clapping to help us. Do you learn to play any? अच्छा देखिए, जो टीचर है ना वो इनका गैरी है, ठीक है ना। अब वो टीचर को आप फोकस करें, उसने टीचर की जगह पर अब नाम आपको दे दिया। वहां कॉमन नाउन था, अब उसने प्रॉपर नाउन यूज कर लिया। किट गैरी इज, गैरी स्टार्ट्स, और जो भी वर्ड आएगा वो आपको ये बात पता है कि वर्ब आईएनजी में आने आ सकता है। टीचर इज प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। तो अब आप सुनिएगा गौर से। Because we're so bad at keeping time. So Gary starts clapping to help us. गैरी स्टार्ट्स क्लैपिंग, तो हमारा जो आंसर आना था वो इसके बाद वर्ब आईएनजी था, क्योंकि वहां सब्जेक्ट लिखा है, सब टीचर इज, तो वर्ब आईएनजी आना था। तो हमें ये ट्रिक होती है, हम पहले से गैस कर रहे होते हैं कि इसके बाद वर्ब आईएनजी आ सकता है। हमने वर्ब आईएनजी को पकड़ लिया। ऑफन लिसनिंग टू आ, चलिए, ऑफ अ सॉन्ग। Do you learn to play any songs? Yes, we do at least one song with words and chords. I mean, that's harder than you think. Oh, I'm sure it is. That part of the lesson takes about 15 minutes. He often brings a recording of the song and plays it to us first. लिसन टू अ डैश ऑफ अ सॉन्ग। देखो आर्टिकल आपके साथ चल रहा है, मैंने शुरू से बता रहा हूं कि आर्टिकल्स के साथ चलो। आर्टिकल्स के साथ चलोगे तुम्हारा जवाब तुम्हारे कानों में जाएगा। लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सॉन्ग, प्लेइंग टुगेदर देन। अब गैस कर लो यहाँ पर क्या हो सकता है। पहले आप साथ बजाएंगे, उसके बाद Then he hands out the song, and if there's a new chord in it, we practice that before we play it together, but really slowly. Do you do any finger picking? That's the last 10 minutes of the lesson, when we pick out the individual notes from a tune he's made up. It's always quite simple. That must be hard, though. Ugh, it is. But people like it because they can really concentrate. And if we're all playing well, it sounds quite impressive. The only trouble is that he sometimes gets us to play one at a time. You know, alone. Oh, that's scary. उसने क्या कहा, प्लेइंग टुगेदर देन ये मैंने पहले बता दिया था, गैस किया था मैंने। देन अलोन, प्लेइंग टुगेदर देन अलोन। चले भाई, अब आ रहे हैं पार्ट 4 पर। इसका टेस्ट 3 और टेस्ट 4 मैं नेक्स्ट वीक आपके से पूरी बुक 19 आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। और अब मैं जा रहा हूं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में हमें क्या मिलता है आइल्स 19 में। अगर आप रोज सुनेंगे ना बेटा, एक्सेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे आज मतलब मैं भी सुन रहा हूँ ना आपके साथ, आई हैव बीन लिसनिंग, ये बिल्कुल वही एक्सेंट है, वही चीज है जो पहले इस्तेमाल किया गया एक्सेंट प्रीवियस बुक्स के अंदर। और ये लड़का और लड़की की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने प्रीवियसली सुनी है। पार्ट 2 में तो ये टेस्ट 2 में तो बहुत स्लो बोला है वो, नो प्रॉब्लम विद द एक्सेंट। चले पार्ट 4 में क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। पार्ट 4 की एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जो हमेशा सिखाता हूँ, उसी को फॉलो करना है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और आज कोशिश करेंगे इसका पूरा एक टेस्ट आपके साथ करें। Part 4. You will hear an archaeology student giving a presentation on an important site in Ireland called the KG Fields. First, you have some time to look at questions 31 to 40. अच्छा अब देखिए, अब इसने बोला 31 to 40 देखे आप। वो बच्चे बेवकूफ होंगे जो 31 to 40 देखने बैठ जाएंगे। आप 31 देखिए, 32 देखिए और 33 देखिए, बहुत ज्यादा 34 देख लीजिए, इससे ज्यादा मत देखिए। अच्छा देखना क्या है, मैंने यहां पर कुछ बातें नोटिस की है। अगर तो आपका जवाब बिल्कुल एंड में जा रहा है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जवाब की सीक्वेंस यूं फॉलो की जाएगी जैसे अभी हम पार्ट 1 में कर रहे थे।
हम यहां से सुनना शुरू करते हैं इस सीक्वेंस में। In the 1930s, a local teacher realized that stones beneath the box surface were once. तो पार्ट 4 में ये फोकस किया जाता है कभी कभार कि जब यहां से वो शुरू करता है, आप वहां से सुनने का शुरू करते हैं, वो शुरू यहां से करता है और फिर वो आता है 1930s में या उस ऊपर वाले अल्फाज। आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अच्छा, यहां पर जैसे लिखा हुआ है हिज डैश, यहां पर ये जो हिज लिखा हुआ है और ये जो वर वंस लिखा हुआ है, सरफेस वर वंस। अब सरफेस वर वंस, देखो जब वर का इस्तेमाल आ गया तो ऐसा लग रहा है कि जो जवाब होगा वो प्लॉरल में होगा। ये बात फोकस कीजिएगा। ये जो हिज लिखा हुआ है ये डिटर्मिनर है, तो ये बदलना मुश्किल है। हिज आपके कानों में जाएगा, कहता है हिज डैश बिकेम इन आर कॉलेजेस, उसका डैश जो है वो आर कॉलेजेस बन गया। कौन भाई? उसका कौन? हिज ब्रदर, हिज अंकल, हिज फादर, क्या? फिर वो कहता है अ ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड बाय लोकल पीपल टू डिग फॉर। देखो, टू डिग फॉर, ये इस खुदाई की जगह पर कोई नया वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फॉर अपनी जगह पर रहेगा। यहां पर ये देखो, ये लिखा हुआ है अ लैक ऑफ, ये पूरा पैराफ्रेज हो सकता है और ये 99% ऐसा होता है कि जो डैश से पहले वाली चीज होती है वो डिट्टो नहीं बोली जाती। अच्छा, पार्ट 4 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको 10 आउट ऑफ 10 दिलाएगी। आपको जैसे ही 31 और 32 तो अभी आप देख लेंगे शुरू करने से पहले, जैसे ही आपको 31 और 32 मिल जाए, और यहां पर देखें 33 भी बिल्कुल चिपका कर ही दे रहा है, वो ज्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा। ये 3 जवाबात आपको एक साथ ही सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही ये वाली बात आएगी, आपको मैं आज के सेशन में फोकस कीजिएगा कि ये जो वाली बात होगी ना, यहां पर वो कम से कम आपको 30 सेकंड देगा, 30 सेकंड देगा कि आप जाकर 34 को पढ़ लें। पार्ट 4 में आपको इस लिसनर के साथ नहीं चलना, स्पीकर के साथ नहीं चलना, ऑडियो के साथ नहीं चलना। अब आपको आगे छलांग लगानी है, क्योंकि ऑडियो कहीं पे भी रुकेगी नहीं। जैसे ही आप 34 का जवाब आपको मिल जाए, अब ये वो हेडिंग है जो आपके कानों में जाएगी, आप उसकी ऑडियो को बिल्कुल इग्नोर करें, बस ये वाला वर्ड कानों में जाने दें, फार्मर्स। इसमें भी कम से कम वो 40 सेकंड्स का आपको टाइम देगा। आप 35 पढ़ लीजिए। जैसे ही 35 का जवाब मिले, आप इसको इग्नोर करें। कुकिंग इंडोर्स को कानों में जाने दीजिएगा। जैसे ही कानों में ये जाएगा, आपको फिर तीन जवाबात एक साथ चिपकाएगा, 36, 37 और 38। तो आपको जाकर उस वक्त ये पढ़ना पड़ता है, और इसमें तकरीबन आपके पास 40 सेकेंड्स होते हैं कि आप रीड कर लें। आपको उसको इग्नोर करना होगा जो ऑडियो चल रही होगी। कुकिंग इंडोर्स को कानों में जैसे ही कुकिंग इंडोर्स जाएगा, आप फौरन 36 पर अलर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अब बिग, बिग की जगह पर अ लार्ज, अ ह्यूज का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। पॉट्स यूज फॉर स्टोरेज एंड टू मेक, मेक क्या सुनेंगे अभी। उसके बाद यहां पर जब वो आएगा हेडिंग पर, इस हेडिंग के ऊपर, तो फिर आपके पास टाइम होगा कि आप फार्मिंग का वर्ड कान में जाने दीजिएगा और आप छलांग लगाएंगे, 39 और 40 को पढ़ेंगे। अभी तो आपने सब पढ़ लिया मेरे साथ, लेकिन जब आप एक रियल एग्जाम में होते हैं तो उस वक्त पार्ट 4 को कैसे डील किया जाता है, ये बात जरा अपने आप इसको फोकस कर लें कि सर ने जो एरियाज को हाईलाइट किया है, यहां पर आप जो ऑडियो चल रही होती है उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दोबारा हाईलाइट करूंगा, जहां इग्नोर करना होगा आप इग्नोर कीजिएगा। आप मेरी स्क्रीन को देखते फॉलो कीजिएगा, आपकी मैं हेल्प करूंगा। चलिए एक एक सवाल के जवाब के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पीटर, स्टार्ट। Poverty. For my presentation today, I'm going to talk about the KG fields in the northwest of Ireland.
one of the largest Neolithic sites in the world. I recently visited this site and observed the work that is currently being done by a team of archaeologists there. The site was first discovered in the 1930s by a local teacher, Patrick Caulfield. He noticed that when local people were digging in the bog, they were constantly hitting against what seemed to be rows of stones. He realized that these must be walls, and that they must be thousands of years old for them to predate the bog which subsequently grew over them. He realized that these must be walls. He realized that these must be, he realized that these must be, Seemed to be rows of stones. He realized that these must be walls. yes, these must be, आपको पहले बता दिया था कि ये वर लिखा हुआ है, जवाब में कोई प्लॉरल आने वाला है, एस वाले वर्ड पे फोकस रखना था। और इसने क्या कहा, स्टोन्स तो ऊपर लिखा हुआ है बेटा उरुज, ऊपर देखो स्टोन्स तो लिखा हुआ है। He realized Stones. He realized that these must be walls, and that they must be thousands of years old for them to walls, अब उसका आपको एक्सेंट समझ नहीं आ रहा, walls, WALLS, predate the bog which subsequently grew over them. He wrote to the National Museum in Dublin to ask them to investigate, but no one took him seriously. It wasn't until 40 years later, when Patrick Caulfield's son, Seamus, who had become an archaeologist by then, कौन आर्कोलॉजिस्ट बना, इसका अच्छा अब देखो, हिज का वर्ड ही गायब कर दिया, उसने दूसरा नाम इस्तेमाल किया कि इसका बेटा, जैसे सर हसीब्स सन, तो हिज सन को उसने बोल दिया सर हसीब्स सन, ठीक है। began to explore further. He inserted iron probes into the bog to map the formation of the stones, a traditional method which local people had always used for finding fuel buried in the bog for thousands of years. फॉर का वर्ड आ गया, कानों में गया, फॉर वाजे तौर पे गया, यस ईश्वर यू आर राइट, एक वर्ड लिखना है उरुज, फॉर डैश, फॉर The formation of the stones, a traditional method which local people had always used for finding fuel buried in the bog for thousands of years. फॉसिल कहां से आ गया, सोचें, फॉसिल है या फ्यूल है, दोबारा सुने। To the bog to map the formation of the stones, a traditional method which local people had always used for finding fuel buried in the bog for thousands of years. Carbon dating later proved that the site was over 5,000 years old and was the largest Neolithic site in Ireland. Thanks to the bog which covers the area, the remains of the settlement at KG Fields, which is over 5,000 years old, are extremely well preserved. A bog is 90% water, its soil so saturated that when the grasses and heathers that grow on its surface die, they don't fully decay but accumulate in layers. Objects remain so well preserved in these conditions because of the acidity of the peat and the deficiency of oxygen. At least 100 a lack of, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने कहा था a lack of की जगह वो बोलेगा कोई दूसरा वर्ड, a shortage of, यहां बोला deficiency of। ये बात जहन में रखो कि पैराफ्रेज तो होगा, a lack of, a deficiency of, और जब ये प्रैक्टिस करते रहते हो ना तो ये वर्ड्स याद हो जाते हैं। अक्सर ये तकरीबन मैंने 5वीं दफा देखा है a lack of का वर्ड, a lack of की जगह इससे पहले था a shortage of, we don't have, या नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते थे, we don't have space। Houses were dash in shape, अच्छा अब देखो, अब तुम अगर तुम्हें नीचे टाइम नजर आ रहा है, इधर देखना, 3 मिनट और 13 सेकंड, अब ये कितनी देर में यहां पहुंचता है, और तुम्हारे पास तकरीबन 30 सेकंड होंगे।
30 सेकंड होंगे कि तुम यहां तक इसको पढ़ सको, 35 को पढ़ो। 75 days of rain a year are required for this to happen. This part of Ireland gets an average of 225 days. The Neolithic farmers at KG would have enjoyed several centuries of relative peace and stability. Neolithic farmers generally lived in larger communities than their predecessors, with a number of houses built around a community building. As they lived in permanent settlements, Neolithic farmers were able to build bigger houses. These weren't round, as people often assume, but rectangular, with a small hole in the roof that allowed smoke to escape. This is one of many innovations and indicates that the Neolithic farmers were the first people to cook indoors. Another new technology that Neolithic settlers brought to Ireland was pottery. अच्छा मैंने जो एक मैंने अभी इस जो सुना, शेप सुनी मैंने रेक्टेंगुलर, जो मैंने शेप सुनी वो रेक्टेंगुलर, हाउसेस वर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। किसी ने अभी यहाँ पर ये भी लिखा है राउंड, राउंड कहाँ से है, राउंड भी बोला था उसने, रेक्टेंगुलर। अच्छा दोबारा सुनते हैं। Bigger houses. These weren't round, as people often assume, but as people often assume, देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है वो, as people often assumed, जैसा कि लोग सोचते थे, कंसीडर करते थे, assume करते थे, लेकिन हकीकत क्या थी? Rectangular, with a small hole in the roof that allowed farmers were able to build bigger houses. These weren't round, as people often assume, but rectangular, with a small hole in the roof that allowed smoke to escape. But they were rectangular. ठीक है, आगे चलिए। अच्छा अब आप ये देखिए, अब आपको ये इसको इग्नोर करना है, और इग्नोर करके अब आप जा रहे हैं, इग्नोर, आप इस सबको इग्नोर कर दीजिए, और अब आप 36 को जाकर पढ़िए। अच्छा आपको कम से कम ये 30 सेकंड देता है कि आप जाकर 36 और 37 और 38 को पढ़ लें। मैं आपको बताऊंगा इसने आपको कितना टाइम दिया, 3 मिनट और तकरीबन 4 मिनट पर है इस वक्त रिकॉर्डिंग। चले। This is one of many innovations and indicates that the Neolithic farmers were the first people to cook indoors. Another new technology that Neolithic settlers brought to Ireland was pottery. Fragments of Neolithic pots have been found in KG and elsewhere in Ireland. The pots were used for many things, as well as for storing food. स्टोरिंग, आपको 20 सेकंड मिले थे, 20 सेकंड में आपको ये पढ़ना था 36 37 तक कम से कम, क्योंकि 38 में भी डेटा बहुत है। अब और क्या बोल रही है? मेक। Pots were filled with a small amount of fat, and when this was set alight, they served as lamps. And they served as, and to make, and to make, and they served as, and to make। क्या बनाया इन्होंने? सुने। Pots were filled with a small amount of fat, and when this was set alight, they served as lamps. उसमें वो फैट्स डाल देते थे, फैट्स जब डाल दिए तो उसके बाद वो क्या बन जाता था? लैम्प। ठीक, टू मेक लैम्प्स enough to support a big। It's thought that the KG fields were mainly used as paddocks for animals to graze in. Evidence from the KG fields suggests that each plot of land was of a suitable size to sustain an extended family. They may have used a system of rotational grazing. अब देखिए इसने बिग की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया एक्सटेंडेड, बिग की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया एक्सटेंडेड। दोबारा सुनिएगा, एक्सटेंडेड। Grazing. Evidence from the KG fields suggests that each plot of land was of a suitable size to sustain an extended family. और सपोर्ट की जगह सस्टेन, टू सस्टेन। They may have used a system of rotational grazing in order to prevent overgrazing and to allow for plant recovery and regrowth. This must have been a year-round activity, as no structures have been found which would have been used to shelter animals in the winter. However,
Archaeologists ड्यूरिंग का एक ऑल्टरनेटिव होता है इन द, ड्यूरिंग का की जगह पर इन द, ड्यूरिंग इन द, अगर आपको prepositions की नॉलेज अच्छी है, ड्यूरिंग इन द, ड्यूरिंग इन द लिख लिया करो अपने पास ये बातें, ड्यूरिंग इन द। अब सुनो, allow for plant recovery and regrowth. This must have been a year-round activity, as no structures have been found which would have been used to shelter animals in the winter. Yep. ड्यूरिंग विंटर, a decline in dash quality. However, archaeologists believe that this way of life at KG ceased abruptly. Why was this? Well, several factors may have contributed to the changing circumstances. The soil would have become less productive and led to the abandonment of farming. लेस प्रोडक्टिव, क्या चीज लेस प्रोडक्टिव? देखो क्वालिटी की जगह पर उसने वर्ड इस्तेमाल कर दिया लेस प्रोडक्टिव, और डिक्लाइन की जगह पर उसने अ डिक्लाइन इन डैश क्वालिटी। लेस प्रोडक्टिव का वर्ड लेस इज इक्वल टू डिक्लाइन, क्वालिटी को प्रोडक्टिव। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है इसने, देखो। Why was this? Well, several factors may have contributed to the changing circumstances. The soil would have become less productive and led to the abandonment of farming. आपने देखा जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी कि ये आखिर से उठाता है, तो इसने ये आखिर से चीजों को उठाया, क्वालिटी, प्रोडक्टिव, लेस इधर से। अब आप सुनने बैठे थे कि डिक्लाइन में कुछ बोलेगा, वो कुछ भी नहीं बोला, उसने पूरा फ्रेज ही बदल दिया। और एन इंक्रीज इन, The crop rotation system was partly responsible for this, as it would have been very intensive and was not sustainable. But there were also climatic pressures too. The farmers at KG would have enjoyed a relatively dry period, but this began to change and the conditions became wetter as there was a lot more rain. इंक्रीज इन, लॉट मोर, इंक्रीज इन, इंक्रीज की जगह पहले राइस का वर्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन इस दफा मैंने सुना अ लॉट मोर। पहली दफा आया ये इस तरह से पैराफ्रेज हुआ लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं था। अ लॉट मोर इसका मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज इन रेन। आई बात समझ? चले, That's the end of IELTS listening session today. हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में भी हम IELTS 19 को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ नया कुछ हमें मिल रहा है। और हम IELTS नेक्स्ट वीक जो मेरा मंडे को सेशन होगा उसमें हम IELTS 19 टेस्ट 3 और टेस्ट 4 को फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह इसके टेस्ट 2, 3 और 4 पे जाएंगे। असाइनमेंट नोट कीजिएगा, असाइनमेंट आप लोग फॉलो करना शुरू कर दें। कोशिश किया करें मेरी एक सीक्वेंस को फॉलो करें, अपना एक प्लान बना लें। मैं हमेशा आपको गाइड करता हूं, आज भी गाइड कर रहा हूं यार, 10 डेज प्लान के मुताबिक चला करो। समझ लो तुम्हारे पास 10 दिन ही है तैयारी के, ठीक है। 10 डेज स्पीकिंग लिसनिंग प्लान, ये आपका एक सेल्फ स्टडी प्लान है। अब आपने आज पार्ट 1 के ऊपर हमने काफी बातें करी, आप एक सेल्फ स्टडी प्लान दे दें अपना। पार्ट 1 को आप 3 दिन दे दीजिए, 3 डेज। पार्ट 4 को आप दे दीजिए 3 डेज, ठीक है ना। आप मेरे साथ आने वाली क्लासेस में जब तक आप इन 3 दिन को देंगे, आप पार्ट 2 भी पढ़ लेंगे मेरे साथ। फिर पार्ट 2 को आप दे दीजिए 3 डेज, और पार्ट 3 को फिर आप दे दीजिए 3 डेज। तो ये आपको ऑलमोस्ट 2 वीक्स का एक प्लान हो जाता है। आप अपनी तैयारी को इस तरह से लेकर चलेंगे, बस भाई 2 हफ्ते ही है, मुझे 2 हफ्ते में तैयारी को सम अप करना है। आपका ये राउंड 1 है, ठीक है। आप मेरे पास अगर भी आपको लगता है कि सर के साथ मैंने 8 हफ्ते रहना है, बहुत अच्छी बात है, फिर आप राउंड 2 में यही फॉलो करें। राउंड 3 हो सकता है किसी का फाइनल राउंड चल रहा हो, बस सर अब आपके साथ 2 हफ्ते और हैं, फिर आप उधर हम उधर, ठीक है। तो आप लेकिन इस प्लान को फॉलो करें। पार्ट 1 3 डेज, पार्ट 4 3 डेज, पार्ट 2 3 डेज। और कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे? बुक 11। मैं जो जिस तरह से पढ़ाता हूँ अपनी लिसनिंग की क्लास में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को एक्सप्लोर करता हुआ जाऊं। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है, अच्छी बात है। आप टारगेट करें बुक 11 टू
18। ठीक है, यानी कि आपको कितने घंटे देने हैं? 4 आवर्स। 4 घंटे लगेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, 4 आवर्स। क्योंकि एक टेस्ट करने में, टेस्ट 1 2 3 4 बुक 11, आधा घंटा लगेगा आपको, 4 घंटे। अब ये 3 दिन में 4 घंटे को डिवाइड कर लो तो कितने घंटे हो जाएंगे? सवा घंटा। यानी कि आपको राउंड 1 के अंदर कितना टाइम देना है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, 75 मिनट्स बस। वो आप एक ही सिटिंग में कर लें। ठीक है बेटा, गॉट इट? सो पार्ट 1, पार्ट 4, पहले पार्ट 1 को फॉलो करें, फिर पार्ट 4 पे जाइए, फिर पार्ट 2 पे जाइए, फिर पार्ट 3 पे। अपना एक सेल्फ स्टडी प्लान स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बुक 11 से लेकर 17 तक के लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कल सुबह बुक 18 और बुक 19 के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसने ऐसा स्टार्ट कर दिया है वो फॉलो करता रहे अपनी प्रैक्टिस को। मेरा काम है आपके अंदर का जमीर जगाने का, और जो आपके अंदर का इंसान है जो सो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे आइल्स रीडिंग के सेशन में। प्लीज फॉलो योर व्हाट्सएप लिंक। अस्सलाम वालेकुम।